Hello everyone. Today we will start some new topic. Okay. So there are some questions running all the time in our mind like what about somebody have high cholesterol? Okay. So what somebody is having high cholesterol if somebody having less vitamin like less vitamin D, or you can say calcium less, or it might be more. Okay. Sometimes somebody is on aspirin. Okay. So the aspirin is like increased dose of aspirin or decreased dose of aspirin. Okay. So these are some questions which you have in your day-to-day life. Might be okay if the person is taking some medications. But if you know that whenever you thought about such question like increased cholesterol is not good, okay, it causes some heart diseases, right, or blood vascular disorder. It is not like that. This cholesterol, which is very important components of the plasma membrane of cell. Which cell in which there is a plasma membrane, there is a cholesterol. Okay, so ऐसी कौन सी सेल है जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अमाउंट में है या कोलेस्ट्रॉल इज मोर इंपॉर्टेंट? दैट इज योर नर्व सेल. Which one? That is your nerve cell. The question which is come in your mind is increased cholesterol is not good, right? But cholesterol is also important component of plasma membrane of nerve cell. If there is a deficiency of this cholesterol, then what happened? Then causes neurological disorder. This is the one thing. यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, that is not all the time problematic. Cholesterol is an important factor of your body, right, or body composition, because cholesterol is important in the plasma membrane of nerve cell. Okay, and if there is a less cholesterol, still you will get certain diseases like a neurological disorder, right? If vitamin D, you thought vitamin D कम हो गया, right, या vitamin D ज्यादा हो गया, या calcium, what happened? These are normal question, but what happens if the vitamin D basically increases and calcium is also more, right? We are worried about कि vitamin D कम है, calcium कम है, but what happens if they are more or they are increased than their normal values? They causes what? Renal stone. Extra calcium. Okay, they will deposit it inside the your kidney. Okay, and because of that there is a renal stone, and because of repeated renal stone your kidney stop functioning, or you can say it is the renal failure. So जरूरी नहीं है कि every time vitamin D कम है, calcium कम है, right? अगर वो बढ़ जाएगा तो you can get the renal stone. कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग बोलते हैं that is not good, लेकिन वो अगर कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ओके, अगर ज्यादा विटामिन, एक और ले लो, दैट इज विटामिन. हम लोग बोलते हैं ना विटामिन कम हो गए, विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ज्यादा विटामिन ले लिए, राइट, सो व्हाट हैपेंड? इट कॉजेस हाइपर विटामिनोसिस. ज्यादा विटामिन भी नहीं अच्छे, इट कॉजेस हाइपर विटामिनोसिस. एंड इफ देयर इज अ मोर विटामिन, योर इंटेक इज मोर, देन यू कॉजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. आपके जीआईटी के डिजीज हो सकते हैं अगर ज्यादा अमाउंट में विटामिन लेंगे तो, राइट. अ ड्रग लाइक एस्प्रिन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? एस्प्रिन वी यूज फॉर हेडेक. ओके, पहले पुराने इसमें करते थे डिस्प्रिन वगैरह. एस्प्रिन वी यूज फॉर हेडेक एंड हार्ट डिजीजेस में हम लोग करते हैं एस्प्रिन, लाइक एस्प्रिन यूज फॉर हेडेक एंड हार्ट डिजीजेस. बट आई नो दिस एस्प्रिन इज यूजफुल, but increase aspirin dose also causes the problem in your kidney. Okay, also causes renal problem. So these are the question which should come in your mind, right? Cholesterol ज्यादा है, might be problematic. नहीं,
कोलेस्ट्रॉल चाहिए आपको, राइट? व्हाई? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल रिक्वायर्ड द कोलेस्ट्रॉल. अगर नहीं रहा तो क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. विटामिन डी कैल्शियम भी बैलेंस में चाहिए, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो स्टोन हो जाएंगे, राइट? एवरीथिंग in excess, right? So that might be problematic. I know deficiency हम सब लोगों को पता रहता, लेकिन excess amount में अगर वो हो जाएगा, still it is problem because body requirement is static, stable चाहिए, वो बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, right? So basically there are like two type of effect. कोई भी किसी भी चीज के दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं. एक तो किसी भी चीज के like anything, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी लो, कैल्शियम लो, anything, they have two type of effects. एक तो acute effect रहेंगे और दूसरे chronic effect रहेंगे. What is mean by acute effect? Acute effect means sudden. अभी कुछ आपने खा लिया and suddenly you are showing something, that is called acute effect. Chronic means आपने आज वो खाया है चीज, लाइक एनीथिंग, लाइक आपने कैल्शियम खा रहे, विटामिन डी खा रहे, राइट? और आपको अभी कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट इनसाइड योर बॉडी ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन थ्रू द किडनी, और फिर वहां एक्यूमुलेट होके फिर स्टोन हो रहे. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक. क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग वे. acute means sudden, अभी जाके दिखाया आपको, right? So that is called acute effect and chronic effect. Okay, so this is what you have to learn in this topic. So anything in excess, okay, it might be harmful. I know anything in lower doses is also a deficiency, but anything which is either good, like vitamin D and calcium is good, right? कोलेस्ट्रॉल वी थॉट इट इज अ बैड, बट आपको विटामिन डी और कैल्शियम भी अगर आप ज्यादा लोगे देन इट कॉजेस द प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू लर्न. नॉट ओनली अबाउट विटामिन डी, सारे ड्रग्स जैसे एस्प्रिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर इस ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक. एंड इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय टॉक्सिकोलॉजी? टॉक्सिकोलॉजी इज राइट बेसिकली any adverse effect of any drug, right? If it is in more amount, okay, that will really hampering the function of your physiological system of your body, and that is we are going to learn in case of toxicology, right? Anything, for example, everybody know about the poison, right? Poison, if you take the poison in small doses, is act as a drug, and if you take the drug in large doses, it act as a poison. हमें क्या लगता है? Poison is bad and medicine, जो हम लोग दवाई लेते हैं, ये ड्रग इज गुड. ये हमारा कंसेप्ट है, इसी की तरह है ये, राइट? लेकिन इफ यू टुक द पॉइजन इन स्मॉल अमाउंट देन इट इज गुड और इट एक्ट लाइक a drug, and if you take a drug in large amount then it act like a poison, right? So this is not about what you are using, this is about how you are using, okay? In what is the dose of that particular thing, okay? It means that अगर आप poison भी अगर accurate और small dose में अगर लोगे तो it act as a drug, and drug in a large quantity it act as a poison, right? So toxicology is not for how bad or good is the drug. टॉक्सिकोलॉजी ये नहीं है आपका कि आपका ड्रग बैड है या गुड है, राइट? कितना बैड है और कितना गुड है, इट इज नॉट अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी. व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट द टॉक्सिकोलॉजी? हाउ मच is the toxicology, right? So what is basically the toxicology gives you an idea. Toxicology आपको क्या बता रहा है basically? Toxicology आपको ये नहीं बता रहा है, right, कि how bad or how good the drug is, right? Toxicology give you idea, right? How much amount of drug you are going to be used. कितना ड्रग हम लोगों ने यूज करना है, right? That is all about the toxicology. हमें क्या लगता है, whenever we are studying or dealing with toxicology, we thought anything which is in excess causes adverse effect on our body, and that is what called toxicology. No, it is not about that. Toxicology is about how much amount of the drug we should use, and that is why the dosage, okay, the half-life of that particular drug, proper diagnosis is very, very important, okay? And this is about that can cause calculated on dose response curve. How much? ये हम लोग कहां कैलकुलेट करते हैं? डोज
response curve, right? So ये समझ में आया आपको? Poison is bad, okay, but if you take in a small amount then it is a good. Drug is also good, but if you take in a large amount it is about the poison. अरे simple है, right? If you are listening a lecture, and I know lectures are so good, all the lectures are good, और गुड है तो इसका मतलब ये नहीं है ना आप दिन भर देखोगे तो जो पढ़ लिया वो भी भूल जाओगे और जो अभी सुन रहे हो वो तो कुछ याद नहीं रहेगा, राइट? दैट व्हाट आई एम से कि कितनी भी चीज अच्छी हो, इफ यू टेक इन अ मोर अमाउंट, दैट इज राइट really not helpful. Okay, so this is all about your which one, introduction to your toxicology, right? So this toxicology, if you there is a case, I just want you to say go for one example. A young patient which is already diagnosed patient of, like you can say, depression. ओके वैसे भी अभी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है यंग जनरेशन में, यूथ में, राइट? सो इफ यू फील लाइक देयर इज अ यंग फीमेल, ओके, कम इन योर हॉस्पिटल और इन योर कैजुअलिटी, ओके, एंड शी टुक सर्टेन पिल्स for suicidal attempts. Okay, she took certain pills for suicidal attempts. Her BP was almost normal, pulse is like 80 to 90, respiration is normal. Okay, and still she is refusing to tell the name of pills. कौन सी पिल्स ली है उसने इतनी ज्यादा, राइट? बट यू नो दैट शी टुक सर्टेन पिल्स, और आपको आप क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम है उसका, आपको बीपी आपको ठीक लग रहा है, पल्स थोड़ा सा ज्यादा है, 90 है, रेस्पिरेशन भी नॉर्मल लग रहा है, एंड शी इज नॉट टेकिंग सेइंग यू अमाउंट ऑफ द पिल्स, तो आप क्या करोगे? दिस व्हाट द प्रॉब्लम. सो फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये है आपके टॉक्सिकोलॉजी के स्टेप्स. सो स्टेप्स to choose. Okay, what are the steps to choose during treating the patient of toxicology, right? The first step is induce MSS, induction of vomiting. यानी आप वो पेशेंट को वोमिट करने लगाओ, राइट? व्हाट इज दैट? इन बुक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड इंड्यूस इमिसिस. ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग उस पेशेंट को? फर्स्ट स्टेप, वी जस्ट इंड्यूस द वोमिटिंग. सेकेंड थिंग वी कैन डू इज गैस्ट्रिक लवाज. व्हाट इज मीन बाय गैस्ट्रिक? ये आपको सबको पता है, स्टमक को हम लोग गैस्ट्रम बोलते हैं, जीआईटी के. लवाज मीन्स वॉश. वी नीड टू वॉश. वॉश यानी उसको ऐसे बाहर निकाल के तो वॉश नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप, राइट? देयर आर सर्टेन मेथड फॉर गैस्ट्रिक लवाज, वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, राइट? देन we can do that ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते कि अगर कोई ड्रग लिया है उन्होंने, सेम टाइम ये सब करते करते, तो हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेज सकते, उसमें उसका लेवल देख सकते, सीरम लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक एजेंट, और सीरम लेवल केमिस्ट्री हम लोग कर सकते उस पर्टिकुलर मेडिसिन की, कौन सा लिया करके, राइट? या हम लोग यूरिनरी टॉक्स स्क्रीन कर सकते. ओके, व्हाट इज टॉक्स स्क्रीन? टॉक्स स्क्रीन मींस देयर आर कॉमन यूजेबल ड्रग व्हिच यूज, ओके, for the suicidal attempt or in the field of this toxicology, and whenever patient come in that particular sign and symptoms, we will do that particular tox screening process, right? Screening process यानी एक type of blood investigation या रहते हैं, वो हम लोगों को उस particular sign and symptoms में करने ही पड़ते हैं, right? That is called tox screening कर सकते हैं यूरिन में, right? We can also use laxatives, right? कैथेट्रिक्स यूज कर सकते या लैक्सेटिव यूज कर सकते, राइट? अगर स्टमक में से वो पर्टिकुलर ड्रग अगर जा रहा है नीचे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस कर सकते, मोशंस बढ़ा सकते, और जितने जल्दी रीएब्जॉर्प्शन होने से पहले वो बाहर निकलेगा उतने जल्दी हम लोग एक तो वोमिटिंग से ऊपर से बाहर निकल सकते, और बाय यूजिंग लैक्सेटिव हम लोग एनल कैनल से बाहर निकल सकते, राइट? या हम लोग होल बॉवेल, पूरा क्या पूरा इंटेस्टाइन धो सकते, दैट इज कॉल्ड होल बॉवेल इरिगेशन, राइट? सो दीज आर द थिंग हम लोग कर सकते, और वी कैन यूज एंटीडोट्स.
ये तो बहुत बेस्ट है. ओके, सो देयर आर सर्टेन ड्रग, अगर उनकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो हम लोग अदर ड्रग यूज कर सकते हैं. दैट ड्रग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक ड्रग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स. बहुत सारे एंटीडोट्स हम लोग को पढ़ने हैं. ओके, सो व्हाट आर द वेरियस एंटीडोट्स, ये हम लोग को बाद में देखने. अभी तो हम लोग देखते हैं जनरल प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग कौन से रहते हैं. कोई भी पॉइजनिंग का केस आपके पास, अभी एक केस आया, मैंने पहले बोला था कि यंग पेशेंट कम्स विद अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, वो आपके इसमें बहुत सारे पिल्स खाकर आई, बट वो बता नहीं रही कि कौन से पिल्स है और कितने अमाउंट में है, राइट. तो आप क्या करोगे करके, तो ये हम लोग क्या करोगे, वी ऑलरेडी नो द लिस्ट. और व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, दे हैव सर्टेन principles whenever you are managing that case. In toxicology, there is also a principle in management. There are certain principles in management of poisoning. कोई भी poisoning का केस हो, there are certain principle in management. Okay. पहला तो है, जब भी पेशेंट आपके पास आए, then you have to stabilize it. Stabilization करो. हाउ वी विल स्टेबलाइज, बाय ए बी सी डी ई, वो देखते हैं हम लोग बाद में, राइट. अभी ए बी सी की जगह अभी ए सी बी हो गया है, राइट. बट दिस इज द मेथड. अब ये ए बी सी डी ई है क्या, वी विल लर्न दिस. पहले पेशेंट को स्टेबल करो, उसके बाद इवेल्युएट करो, इवेल्युएशन करो उस पेशेंट का. सो वी कैन डू द इवेल्युएशन. ड्यूरिंग इवेल्युएशन एट द सेम टाइम यू कैन डू डीकंटामिनेशन. अब ये सब है क्या, हम लोग एक एक बाद में देखते, फिर हम लोग उसका डीकंटेमिनेशन कर सकते हैं. अब डीकंटेमिनेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉइजन अंदर चला गया है, राइट, इनसाइड द स्टमक और जीआईटी, उसको निकालेंगे. दैट इज पॉइजन एलिमिनेशन. ये करना है हम लोगों को. ओके, देन एंटीडोट यूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज, ड्यूरिंग दिस person might land up into decreased blood pressure or increased blood pressure, dehydration में चला गया या overhydration में चला गया, उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, राइट. जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट. और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर. ओके, नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट हम लोग उसको क्या देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल केयर. क्योंकि if somebody is taking huge amount of pills, he want to go for some suicidal attempt, right? And for that, psychological care or consultation is very important. After treating everything, you cannot say the patient is good. अगर patient को डिप्रेशन आ गया और डिप्रेशन में उन्होंने कुछ बहुत सारी टैबलेट्स खा ली, तो पहले उसको हम लोग स्टेबल करेंगे. उसके बाद क्या खाया वो इवेल्युएट करेंगे. सेम टाइम डीकंटेमिनेट करेंगे, राइट. अगर माउथ में कुछ बची हो या कपड़े पे कुछ पॉइजन लगा हो, राइट, तो वो निकाल देंगे. उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करके पॉइजन एलिमिनेशन करेंगे. कोई दूसरा एंटीडोट हो तो वो एंटीडोट यूज कर सकते हैं, राइट. ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर करेंगे. लेकिन ये सब करने के बाद अगर पेशेंट ठीक भी हो जाए, एंड इफ यू डिस्चार्ज द पेशेंट, स्टिल पेशेंट कैन कम अगेन. क्योंकि आपने क्या नहीं किया, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और साइकोलॉजिकल केयर नहीं किया उसका. बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. फॉर दैट साइकोलॉजिकल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो पहले हम लोग देखते हैं स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं, राइट. अब उसमें आपको ABCD सब आ जाएगा, राइट. हाउ विल यू डू द स्टेबलाइजेशन. इन स्टेबलाइजेशन व्हाट इज दिस, A स्टैंड फॉर एयरवे मेंटेन करना है आपको. व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेंटेन द एयरवे, राइट. यानी अगर कोई कुछ खा लेगा और उसका हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है, राइट. सो एयर इज नॉट गोइंग इनफ इनसाइड द लंग्स, सो यू हैव टू मेंटेन दैट. ओके, हो सकता है अगर किसी का बेसिकली because of something he ate a huge amount of that particular dosages and he fall. After the fall you have to take care of spine also, क्योंकि अगर आप उसको किसी भी तरह से अगर आप उसे उठाओगे, राइट, तो हो सकता है स्पाइन रप्चर हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो एयरवे मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जितना अच्छा एयर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड एयर जाएगा, उतना स्टेबलाइज होगा, राइट. व्हाट इज B? B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग.
सिर्फ एयरवे मेंटेनेंस करना, पॉइजनिंग की वजह से क्या आ जाता है ना, ये आ जाता है बहुत सारा फ्रॉड आ जाता है मुंह में, इसलिए वो एयर नहीं जा पाता, या नाक में से भी कुछ आ सकता है, तो वो आपको क्लीन करना है, एयरवे आपको क्लीन करने हैं, ब्रीदिंग देना है। सेकंड इज ब्रीदिंग, जिसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। पेशेंट इज अनकॉन्शियस और पेशेंट अगर ब्रीथ नहीं कर रहा है तो यू कैन पुट ऑन आर्टिफिशियल वेंटिलेटरी सपोर्ट्स, राइट, आप उसको ऑक्सीजन बाहर से लगा सकते हैं। सो दैट इज बी। व्हाट अबाउट द सी? सी यानी सर्कुलेशन मेंटेन करना पेशेंट का, राइट। अगर वो पॉइजनिंग की वजह से वो गिर गया है और उसका ब्लड लॉस हो गया है, राइट, हिमोरेज हो गया है, तो आपको उसको ब्लड देना पड़ेगा, सो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो आपको सर्कुलेशन, सी पर से सर्कुलेशन उसका ठीक करना है। डी, व्हाट इज दिस? डी, डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ओके, सो क्या करना है? व्हाट इज डी? डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई रह गया हमारा भी, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इन डी, वी शुड डायग्नोस बेसिकली, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ई क्या है अभी? व्हाट इज दिस? ई, जो भी एक्सपोज हुआ है वो एनवायरमेंट से, राइट। अगर ए पेशेंट इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्रग से ही टॉक्सिसिटी आ सकती है, राइट। अगर कुछ लीक हो गया है फैक्ट्रीज में, राइट, और वो गैस लीक होने की वजह से वो उसको एक्सपोज हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइजनस गैस ही इज गेटिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। आपने उसका एयरवे टिक कर दिया, आपने उसका ब्रीदिंग लगा दिया वहां पर, इमरजेंसी में सर्कुलेशन आप देख रहे हो, पल्स वगैरह, डायग्नोसिस भी कर दिया कैसा है कैसा नहीं है, और आप उसको वही पर छोड़ा है, राइट, या वहीं पर पकड़ कर रखा आपने कि उसी गैस लीकेज चेंबर में, तो उसका एक्सपोजर तो कंटिन्यू है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। तो ये एक्सपोजर टू दैट एनवायरमेंट आपको रिमूव करना पड़ेगा वहां से, उसको एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट रिमूव करना बहुत जरूरी है उसको वहां से। सेकेंड थिंग इज दैट इफ सम केमिकल लिक्विड अगर उसने गलती से उसके माउथ में चला गया एंड ही विल गेट द पॉइजनिंग, so what happened? Because of that ingestion of that chemical, liquid chemical inside the mouth, he is having all this problem. वो आपने ठीक कर दिए, लेकिन same chemical it is spill on his cloth also, तो वो cloth आपको निकालना पड़ेगा, right? So we need to remove the clothes. At that time we should take care, if the female patient is there, then the female assistant or female nurse, okay, or female doctor should be there, okay, for removing the cloth. Okay, so this is all about your which one, how will you go for the stabilization. So stabilization is very important. So it is basically the maintenance of the airway. तो ये हो गया आपका पहला stabilization. So stabilization में हम लोग देखते हैं airway कैसे maintain करना. Okay, so whenever you are maintaining the airway, हमको सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी। बेसिकली यू आर मेंटेनिंग द एयरवे, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग सर्वाइकल स्पाइन? बिकॉज पेशेंट इज बेसिकली अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस है तो ही कैनॉट होल्ड हिज नेक। हो सकता है गिरने के बाद वो इधर जाएगा उधर जाएगा, या आप उठाते उठाते हो सकता है उसका नेक नीचे आ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। सो इसको प्रोटेक्ट करना, उसको उठाने के वक्त ठीक से सपोर्ट देना, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, राइट। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द एयरवे। ओके, अगर कोई कुछ खा लिया उसने, तो हो सकता है साथ में कुछ और उसके माउथ में चला गया हो गया, राइट, तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, साइन ऑफ फॉरेन बॉडी चली गई है, राइट। सो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन ये भी देखना है। एयरवे मेंटेनेंस मींस सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। इफ यू फाउंड एनी फॉरेन बॉडी, या कुछ फ्रैक्चर हो गया होगा इधर से, राइट, टीथ का फ्रैक्चर है या कोई किसी भी चीज का फ्रैक्चर है, और जो आपकी एयरवे को मेंटेन नहीं कर दे रहा है, सो वी नीड टू इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। ओके, सो दिस एयरवे, सो इजी वे टू डिटरमाइन इज व्हाट, क्या है सबसे इजी वे, क्या है कि आपके जो पेशेंट का एयरवे अच्छा है या नहीं है, कौन सा इजी वे है, राइट। कुछ नहीं है, इजी वे इज वेरी इजी। बात कर लो पेशेंट के साथ, टॉक टू योर पेशेंट, राइट। इफ यू आर टॉकिंग विथ योर पेशेंट, राइट, एंड योर पेशेंट इज रिप्लाइंग, ओके, इट मीन्स दैट उसका एयरवे ठीक है। दिस इज द इजी वे टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एयरवे, राइट। सो और एक ये रहता हमारा GCS स्किल। आई डोंट नो यू हर्ड दिस, दिस इज कॉल्ड GCS,
दिस इज कॉल्ड गैस ग्लो कोमा स्केल. ओके, दिस GCS और गैस ग्लो कोमा स्केल, इन्होंने एक पर्टिकुलर साइंस बनाए हैं, राइट. यानी 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 4, उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाए. उसमें उन्होंने लिखा है कि लाइक 1 पॉइंट यानी पेशेंट ठीक से बात कर पा रहा है, 2 पॉइंट यानी उसके प्यूपिल फाइंडिंग अच्छे है, सारे उसमें पॉइंट्स ऐड किए. दिस स्केल इवेल्युएट अपने पॉइंट के हिसाब से पेशेंट को इंटुबेट करना जरूरी है या नहीं. व्हाट इज मीन बाय इंटुबेशन? आर्टिफिशियल एयर या वेंटिलेटर डालने के लिए उसके नोज या माउथ में से आपको ट्यूब डालनी है अंदर से, क्योंकि पेशेंट नहीं ले पा रहा है, और फिर आपको उसको वेंटिलेटर पर डालना है. इसके लिए आपको इंटुबेट करना पड़ेगा. एक पहले ट्यूब डालनी पड़ेगी, और वो ट्यूब आपको मशीन को कनेक्ट कर रही है. कब? व्हेन पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ बाय एनी मीन्स, तब उसको आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है. इसके लिए आपको इंटुबेशन करना है. फॉर एग्जांपल कोमा में चला गया, राइट, सो ही कैन नॉट रियली टेक हिज ब्रीदिंग. तो यही है गैस ग्लो ने अपनी जो वो पर्टिकुलर उन्होंने एक कोमा स्केल बनाई है, एक रीडिंग बनाया है. उसमें अगर इफ इट इज 8 और लेस देन 8, उससे अगर कम रहेगा, देन 100% द पेशेंट रिक्वायर द इंटुबेशन. यानी किसी भी पेशेंट को आप इंटुबेट नहीं करोगे, राइट. चलो भाई पॉइजनिंग है और उससे आप बात करते करते आप उसमें वेंटिलेटर पे डाल दिया, नहीं. अगर उसका GCS गैस ग्लो कोमा स्केल इफ इट इज 8 और उससे भी कम है, then only you can go for the intubation, right? So these are current trends. वो एक हर चीज का एक स्केल रहता है. देखो हमारे ब्लड प्रेशर का है ना एक स्केल, 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. अगर वो बहुत ज्यादा हो गया, लाइक इफ इट इज मोर देन लाइक 140/90 से ऊपर चला गया, तो आप क्या करते हैं, उसका ब्लड चेक करते 3 बार, एंड देन यू विल स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव. ऐसा है क्या कि 120/80 ब्लड प्रेशर है और वो अगर 121/81 हो गया तो आप उसको हाइपरटेंसिव करते क्या? नहीं. देयर आर सर्टेन स्केल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, कोमैटोज पेशेंट है या नहीं है, उसको इंटुबेशन करना जरूरी है या नहीं है, वेंटिलेटर पे डालना, इसके लिए एक स्केल है जिसको हम लोग GCS स्केल बोलते हैं. इफ इट इज लेस देन 8 और 8, देन patient need the intubation. Okay, if there is no cervical spine injury, okay, तो आप क्या कर सकते, हेड को इस तरह से टिल्ट कर सकते और जॉ को ऊपर लिफ्ट कर सकते. एयरवे मेंटेन है तो आप पेशेंट को ऐसे इस तरह से सुला सकते पीठ के ऊपर, बाय गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू द नेक एंड एलिवेट द चिन, राइट. सो इफ दिस इज लाइक अ पेशेंट, यू कैन एलिवेट द चिन को एलिवेट करना. ओके, यू कैन एलिवेट द चिन. ओके, हेड को इस तरह से टिल्ट कर दिया आपने, एंड यू कैन लिफ्ट द जॉ. हेड को टिल्ट करो और जॉ को लिफ्ट करो, ओपन कर दो, एंड देन यू कैन सी कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, नहीं है क्या, वो आप कर सकते हैं. ओके, एंड यू ऑलरेडी नो रैपिड सीक्वेंट इंटुबेशन क्या रहता है, राइट. अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसने अगर कुछ एस्पिरेट, अनकॉन्शियस अगर रहा, देन पेशेंट कैन एस्पिरेट करना. यानी क्या करना, नॉर्मली जो भी आप कुछ खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो आपके वो स्टमक में जाएगा. एस्पिरेशन करना यानी इन स्पाइट ऑफ स्टमक इट विल एंटर इनटू योर, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पैसेज, एंड दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन. उस एस्पिरेशन को बचाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड, जब हम लोग इंटुबेशन करते हैं तो क्या क्या करना है, राइट. सो ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन, एयरवे मेंटेनेंस, रैपिड सीक्वेंस जो इंटुबेशन मैंने आपको बताया, किस लिए करते, टू प्रिवेंट द स्वेलिंग एंड एस्पिरेशन. रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन याद रखना है आपको. कब करते हैं, जब आपको पता है कि पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस है एंड पेशेंट इज गोइंग टू एस्पिरेट द बेसिकली एनी काइंड ऑफ केमिकल और एनी काइंड ऑफ फ्लूइड. ओके, whoever is doing that, it require क्या करना है आपको, ये जो मसल रहते हैं जहां से आप आपकी ट्यूब अंदर डाल रहे हो, राइट. सो इफ यू आर पुटिंग सम ट्यूब इनसाइड, माउथ में से है, उसके नेक में से लंग में जा रही है, राइट. दिस रिक्वायर रिलैक्स मसल. अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे मसल आपके, तो क्या हो जाएगा, वो ट्यूब अंदर ही नहीं जाएगी, राइट. सो इट रिक्वायर रिलैक्सेशन ऑफ मसल. ओके, सो पहले तो आपको ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, जिसको हम लोग बिग वॉल मास से ऑक्सीजन देना है. 100% ऑक्सीजन जो देते हैं हम लोग, राइट, पेशेंट को, राइट. आपने देखा होगा कि इस तरह से माउथ के ऊपर गैग लगाते हैं, देन दे प्रेस दैट वॉल मास जहां से ऑक्सीजन जाएगा, राइट. इंटुबेट करने के पहले you have to give some pre medication like atropine देना है, या
पेनफुल है तो एनाल्जेसिक देना है और एनेस्थेटिक भी दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं आप? प्री मेडिकेशन हम लोग क्या देख सकते हैं, राइट? सो वी कैन गिव लिडोकेन, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और क्या क्या दे सकते हैं, राइट? एट्रोपिनाइज कर सकते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हमको प्री मेडिकेशन देना है, राइट? देन you have to start induction of the intubation. So this is very important. So in really a conscious patient तो आप ये कर नहीं सकते, right? तो आपको क्या करना है, मूविंग ब्रेन फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस करना है आपको। आप ये सेमी कॉन्शियस पेशेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पेशेंट यही नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट ही नहीं करेगा, राइट? क्योंकि ही इज लाइक इन पेन, ऑलरेडी ही इज इन अ पेन, और आप इस तरह से प्रोसीजर करोगे तो और पेनफुल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको यू हैव टू इंड्यूस करना, यानी क्या करना, उसको एनेस्थेटाइज करना, उसके ब्रेन को कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस की तरफ लेके जाना। सो बाय गिविंग एनेस्थेटिक मेडिकेशन, राइट, विच वन, मिडाजोलैम, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट कॉमनली यूज मिडाजोलैम। ओके, सो वी कैन इंड्यूस द बेसिकली एनेस्थेशिया, उसको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में लेके जाओ, राइट? और क्या कर सकते, उसके जो मसल है जो कंस्ट्रिक्ट हो रहे, राइट, उसको हम लोग थोड़ा सा पैरालिसिस कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दैट वी कैन यूज सक्सिनिल कोलिन। पैरालिसिस करना टेम्पररी हो रहा है ये, क्योंकि आपकी प्रोसीजर स्मूथली हो, उसके मसल आपको ऑब्स्ट्रक्शन ना करे ट्यूब डालने के लिए। सो वी कैन यूज सक्सिनिल कोलिन। ओके, सो एक सक्सिनिल कोलिन हम लोग वहां यूज कर सकते हैं, राइट? So this is basically which one? These are the drug is required when patient is in not really stabilized, और आपको अगर एयर में मेंटेन करना है तो।